What triggered you to become a lawyer? अगर मैं मस्ती में बोलूँ तो मैं अच्छा खासा झगड़ा कर लेती हूँ. This confidence has come with a lot of time, patience and struggle and bad days also. Because मुझे पहले ये ऐसा नॉर्मल बात करना या किसी से बात करना, एक कैमरा कॉन्शियस भी होती थी या बात करना was something I used to not be comfortable and not be confident about. Okay, so I am Payal Sanjay Dalwani. My professional is lawyer. I'm into corporate law, but I'm also practicing into criminal. I'm also an influencer. I am mostly a food blogger. Side by side, थोड़ा lifestyle, थोड़ा fashion, वो भी चल जाता है. And I also own a cloud kitchen named as Maya's Kitchen, which is run by me and my brother. Today we are having Miss Payal on our podcast, and it's really pleasure to have her. And she's a very good hustler in my connection, I would say. So I wanted to share her journey with you all, and maybe you will find few inspiring stories from this today's podcast. So now let's hear her story. So welcome, Payal, Hi. today on our podcast. And Thank you for calling me. so I just wanted to introduce, about you a little bit. Okay, so I am Payal Sanjay Dalwani and मैं lawyer भी हूँ. Okay. And my professional is lawyer. I'm into corporate law, but I'm also practicing into criminal. And I'm also an influencer. I am mostly a food blogger. And then side by side थोड़ा lifestyle, थोड़ा fashion, वो भी चल जाता है. And I also own a cloud kitchen named as Maya's Kitchen, which is run by me and my brother. So yeah, that's about me. And whatever 3-4 things I guess you mentioned about, so could you please little bit brief about those, about your kitchen and about your lawyer profession in just 6 to 7 lines, I would say, whatever you do, how do you contribute by those means into the society? Okay, so law basically I finished it 2 years ago, and since then I'm practicing now. And coming to the kitchen part, Maya is my grandmother's name. Okay. So that's how Maya's Kitchen happened. It so right now, abhi next month 1 year हो जाएगा Maya's Kitchen को. And so Maya's Kitchen में what we do is, I'm a Sindhi, okay. So we only sell authentic Sindhi mutton curry, okay. Wow. Yeah. और it's my grandmother's recipe only, and then हमने सोचा कि let's also promote our culture and the love she shared with that dish. Okay. And what else you do next? And coming to this influencing part, I'm also weekends पे कुछ नहीं, उससे अच्छा कुछ नहीं करने से अच्छा कुछ कर लो ऐसा करके. तो फिर I started 5 years ago I started food blogging. And then I used to go on food tastings यहीं पुणे में, review restaurants and everything. Now धीरे धीरे I've started traveling also with that, and lifestyle also. I review products and चल रहा है अच्छा खासा. Nice, buddy. So yes, this 3 things are like something I do on daily basis. Okay. Apart from that, I also run a WhatsApp group for girls जिसका नाम है Inspire Her. तो जहाँ पे we girls are there for each other, okay. For I am there for someone is there for someone, ऐसे करके. And then we support each other, we help each other to for self love, and थोड़ा confidence boosting हो जाता है. And if there is someone for you, you already feel confident. Right. And we all go through something like mental issues and XYZ societal issues and all of that stuff. So एक वो भी platform है जहाँ पे it's only for girls right now, because I think I can only connect with girls more than boys right now. So but yeah, let's see how it goes. अभी तक तो अच्छा खासा चल रहा है. Nice. Yes. Okay, wonderful. So as you know, the flow of our podcast is after you what you do society as one. Now we will pick the traits which help you in this hustling journey. Yes. I have shared with few traits of hustlers, I would say, with you. So you can pick any of those, and you can just start explaining your journey, which will be correlating with whichever traits you will pick. So you can just see, and you can just. So my my basic trait I would say is ambitious and goal driven. Okay.
एंड मैं इसलिए ये बोल रही हूँ क्योंकि मैंने एक्चुअली में आफ्टर माई 12th, अभी सब लोग 12th के बाद वेकेशन, अभी बोर्ड Yeah. खत्म हो गए हैं Right. एंड चलो वेकेशन पे जाते हैं पेरेंट्स के साथ, पर मेरा वैसा नहीं था. आई एम द एल्डेस्ट डॉटर इन माई फैमिली, आई एम द एल्डेस्ट चाइल्ड ऑल्सो इन माई फैमिली, लाइक आई हैव यंगर सिबलिंग्स. सो अभी एक एल्डेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उतनी ज्यादा आती है, राइट? तो लाइक एक हफ्ता मुश्किल से मैंने शायद छुट्टी लिया होगा एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग. सो माय फर्स्ट कंपनी वाज टाटा, जो पिंपरी में थी. And what you used to do, like नहीं, कुछ नहीं, कॉल सेंटर, बिकॉज 12th right. ग्रेजुएशन होता नहीं है. आई थिंक नाउ इट इज दे डोंट अलाउ ओनली 12th के बेसिस पे जॉब करना, बट दैट टाइम व्हेन आई वाज डूइंग इट, लाइक इट वाज आई गेस 2017 or 18. So I passed my 12th and I started working. So my first company where I was working was Clear Trip. Just like Make My Trip होती है, वैसे it was Clear Trip. Okay. So I started working there. हमको सीधा ही जाना है, ठीक है? सीधा. हाँ. And since then, you know, I was also studying. I was in my first year law. I started somehow I got into law. Because मेरा plan starting में था BBA करने का. Then I thought BBA because of the ambition you felt like okay, ठीक है, along with the work I will start into the law as well. Because पढ़ाई तो करना था, definitely करना था. और somehow law came into my life and कि मैंने सोचा कि चलो ठीक है, law तो करते ही हैं, but side by side, you know, I wanted to also earn money because we were 7 of us and my father was only one who was earning. तो अब एक सैलरी से 7 लोगों का कॉलेज भी हो रहा है, स्कूल भी हो रहा है, घर भी हो रहा है, प्लस ग्रैंड पेरेंट्स भी थे, तो उनका भी सब कुछ हो रहा है. टचवुड उस हिसाब से सब सही था. बट देन यू नो होता है ना कि why to live restricted instead of, you know, start earning and all of that stuff. So that is also one thing I started doing. And my ambition was always that कि मुझे अपने आप को बिजी रखना है, plus whatever my goals are. एक lawyer तो मुझे बनना ही था. That was my goal that time. And so yeah, that was what triggered you to become a lawyer? अगर मैं मस्ती में बोलूँ तो मैं अच्छा खासा झगड़ा कर लेती हूँ. बट हाँ, झगड़ा तो मैं कर ही लेती हूँ. और हाँ, I think I'm also a strong personality when it comes like a lawyer के पास जो advocate के पास एक personality है, वो भी एक होता है. And I also, you know, I also took advice from my uncle who I like look up to a lot. He's like my role model and I admire him a lot. So he also asked me like, you have 2-3 options. या तो journalism करो, या तो mass media करो, law कर सकती हो. Don't do BBA IB because सिंधी है तो खून में ही business है हमारे. Right. तो फिर उस पढ़ाई क्यों करना है, ऐसा था तभी. I also got admission BMCC में for BBA IB. But then मैंने सोचा चलो ठीक है, नहीं, I think it's law now. और मैंने थोड़ा रिसर्च भी किया कि मुझे किस तरफ से ज्यादा ऐसा अच्छा लग रहा है. अभी ना थोड़ा बाहर निकल, इसके भी आ गया. तो फिर वो हो गया. एंड देन फिर मैंने MMCC में ये कर लिया, एडमिशन ले लिया. वो भी एक था कि मैंने बालाजी लॉ कॉलेज में लिया था, बट फिर ऐसा लग रहा था घर के बहुत पास में है वो, बहुत ज्यादा है ये, मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर निकलना है. तो वो एक्सप्लोर करने का भी एक होता है ना आफ्टर 12th, यू नो. तो फिर मैंने पुणे में एडमिशन लिया. एंड देन साइड बाय साइड कॉलेज भी हो रहा था. फिर कोविड भी आ गया. तो कोविड में तो 2-3 साल हमने पढ़ाई ही नहीं, ऑनलाइन एग्जाम्स देते रहे. तो फिर बिजनेस कह रही हूँ, और जॉब तो सही चल ही रहा था तब तक. अच्छा, what will be the another trait you would correlate with your job? My another trait would be multitasker I am, and also you can say independent. जैसे I said, you know, I started working really early in my life after 12th only. So that was something also triggered me also, now motivated me कि independence चाहिए. I don't want to ask for money to my parents and all of that stuff. पापा से कितना ही पैसे मिलेंगे, वो basic 2,000 rupees per month, जिसपे सब कुछ, पेट्रोल भी तुम ही करो, खाओ भी तुम ही, जाओ भी तुम ही, तो वो होता नहीं था. Right. So money was that time my motivation, but yes, तो फिर जब वो इंडिपेंडेंस का चस्का लग गया ना कि इंडिपेंडेंट लाइफ क्या होती है जब किसी से पैसे नहीं मांगोगे, तो एक वो भी था. एंड मल्टीटास्किंग, as I said, I used to also study, I used to go to my job. तब तो मैं नाइट शिफ्ट करती थी क्योंकि BPO में नाइट शिफ्ट ही होता था. वो अभी भी है शायद मोस्टली. तो वो था. एंड देन लॉ भी कर लो, इन्फ्लुएंसिंग भी कर लो, ऐसा 2-3 चीजें. मतलब सुबह घर से बाहर निकलो तो मैं सीधा रात को ही वापस आऊंगी, ऐसा वाला. हाँ, मुझे अपने आप को बिजी रखना बहुत अच्छा लगता है. एंड एक टाइम पे मैं 3 चीजें ऑलरेडी कर रही थी. तो what was those 3 things? See, law was one thing. I was studying law.
I was also practicing, मतलब थोड़ा internship करना पड़ता है हम लोगों को कभी कभी for 1 to 2 months ऐसा वो होता था. Then job होता था and influencing होता था. तो weekend was for my influencing, like food blogging. Weekend आया कि निकल जाओ food blogging के लिए. Right. So this was something I'm really happy about right now. कि ऐसा मैं करती हूँ. That is what helped you to develop this multitasking wala trait, I would say. Yes, multitasking. Even now I can, if you tell me 2 to 3 things to do in a day, I will do it very easily. At one time also I can do it. थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ता है स्टार्टिंग में, but I can do it. I am a good multitasker, that you can say. Okay. And nice. Then I move to next trait now. Yes. एक second है ना. Yeah, so my next trait would be, I would say, adventurous and optimistic soul. I can say I am like थोड़ा पॉजिटिव ही रहती हूँ लाइफ में मोस्टली. एंड कोई ऐसे इंसिडेंट आए हैं where you are claiming that you always like to stay as a positive or the optimistic souls, like someone tried to be pushed on you as a negative, or they tried to act as a negative, but you still stood as a positive, ऐसे कोई incident? so it is mostly societal and my friends also, like not my friends जैसे बोल सकते हैं, but someone I know. यहाँ से बाहर निकल के सीधा. So someone I know, it's not about my friends also, but it's like society. जैसा जब मैंने law स्टार्ट कर लिया था तब ऐसे मेरी फैमिली में किसी ने भी लॉ नहीं किया है. आई एम द फर्स्ट वन हु इज अ लॉयर ऐसा एज सच इफ यू से. तो that time some people in my family used to say, अरे क्यों पढ़ा रहे हो लॉ, लड़का नहीं मिलेगा शादी करने के लिए, because lawyers are dominating by nature and थोड़ा होता है उनका, people will not give their boys to her, like their guy, like घर का लड़का ऐसा वैसा अच्छा नहीं मिलेगा, घर थोड़ा प्रॉब्लम होता है. एंड इन्फ्लुएंसिंग के साथ भी ऐसा ही था. when I started I was like one of the first ones भी नहीं, kind of first one ही बोल दो इन PCMC, या PCMC भी नहीं, पिंपरी ज्यादा करके जो मेरी एरिया थी जहाँ पे मैं born and raised हुई हूँ. So people used to judge, यार ऐसे कैसे इसको फ्री में खाना मिल रहा है. तो तब मेंटालिटी माइंडसेट वैसा नहीं था ना कि अच्छा ऐसा भी होता है. So like you used to do the food blogging, I so used they to used to offer blogging, you you come to our place. Yes. कि तुम हमारा आके प्रमोशन कर लो, and they used to give free food also ना. And after some time they also pay for promotions, right? Oh, so you did both, मतलब food भी enjoy किया and you got paid well. Also, exactly. Nice. that was something. By any chance can you recall like during those days how much you made tentatively? कुछ नहीं, it was nothing, like 2,000 to 3,000 pocket money निकल जाता था. That's fine. I mean, like, वो best था. You used to do it on your own. That could be an inspiring thing. Like अगर कोई पढ़ रहा है अभी फिलहाल, and like if they really want to make few bucks for themselves. Yeah, it was a good option. It's a good option, right? Starting में इतना कुछ पैसा नहीं मिला. जैसे धीरे after COVID people started knowing कि social media का इतना importance होता है and all of that stuff. And that time also I was still studying. I was a student. तो मेरे लिए जितना पैसा आ रहा है वो best ही था. जब भी मतलब क्योंकि पढ़ाई. I would say कि जब स्टूडेंट रहते तो 500 रुपए भी अगर मिल रहा है हमको एक्स्ट्रा तो like अरे यार I'm making a lot. हाँ, तो वो था. और घूमने का भी चस्का बहुत था ऐसा. एडवेंचरस, when I say I'm adventurous, after COVID I started traveling solo. ठीक. And that was also something I only started. Like मेरी फैमिली में वो भी किसी ने नहीं किया. अच्छा, solo traveling. मुझे देख के जो मेरे younger cousins है या younger siblings है उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया कि okay, हाँ मतलब मुझे ऐसा है कि मुझे पहाड़ों से, या पहाड़ भी नहीं बोल दो अभी, I also love Goa a lot. Beach. हाँ, बीच भी बोलो, पहाड़ भी बोलो, ऐसा मैं कोई ऐसा ही नहीं, बट ट्रैवलिंग बोल दो बेसिकली. I love traveling, like कुछ भी हो जाए. You can do a solo traveling. Yeah, I can do solo traveling. Okay. So nice. That was one thing. And optimistic as in एक बार जब मैं फर्स्ट टाइम तो मैंने कुछ सोलो ट्रैवल्स कर लिए थे ऐसे ही आसपास थोड़ा. उसके बाद I took a group of 30 people along with me to Spiti Valley from my Instagram only. मैं किसी को जानती नहीं थी. There was also one person who helped me. Like there was also one influencer. We two teamed up and हमने Instagram पे से सबको पूछ लिया कि if anyone wants to join. तो सब अपने सोलो पे ही सोलो ट्रिप ही कर रहे थे. कोई किसी को ऐसा खास जानता नहीं था. वहां पे सब लोग जाके ऐसा एक दूसरे को जानने लग गए. So that was also something जो मुझे बहुत ऐसा क्या कहते हैं मोटिवेट कर लिया. राइट. So that's how you will say yourself as a
like optimistic and adventurous also, because I love solo traveling, and solo traveling is pretty adventurous. Matlab, okay, what will be your next trip you'd like to correlate? I think next trait would be community oriented. I am. Okay. Just I said, I also run a group called Inspire Her. So it also has a story, because I also went through something, क्या कहते हैं, this confidence has come with a lot of time, patience and struggle and bad days also, because मुझे पहले ये ऐसा normal बात करना या किसी से बात करना, एक कैमरा कॉन्शियस भी होती थी, या बात करना was something I used to not be comfortable and not be confident. Plus life में ऐसे when life starts, adulting starts and all of that stuff, influencing also demanded me to come over camera, like to start talking on camera. And people used to look up to me. I don't know why, but sometimes people used to look up to me on my Instagram, and मैं खुद को ही self doubt करती थी, यार मेरे में ऐसा क्या है जो क्यों, why are like younger girls like कुछ and I used to get messages. That's how I got to know that people like younger girls are looking up to me, कि उनको मेरे जैसा कुछ करना है. And my friends also, यार तेरी जैसी लाइफ चाहिए, तेरी जैसी लाइफ चाहिए. मैंने कहा no bro, grass is always greener on the other side. यहाँ मेरी जैसी लाइफ में क्या है, मतलब what is fun in my life. मुझे ऐसा ये लगता था कि हाँ ठीक है, मैं कुछ 4 जगह पे घूम रही हूँ, तो वो देख के लोगों को ऐसा थोड़ा वो होता है ना, फोमो फील होता है, तो या तेरे जैसा लाइफ चाहिए, या फूड ब्लॉगिंग कर लो तो तेरे जैसा लाइफ चाहिए, या XYZ. बट आई ऑल्सो हैव माई ओन थिंग्स इन माई लाइफ, जो जिसके थ्रू आई वॉज गोइंग. फिर मैंने एक दिन सोच लिया, यार नहीं, कुछ तो आई डोंट वॉन्ट टू लिव अ एवरेज लाइफ, क्योंकि ये मेरा अंदर से ही कॉलिंग है हमेशा से, कि मुझे कुछ ऐसा करना ही नहीं है जो एवरेज लोग करते हैं. आई एम नॉट लाइक, नो ऑफेंस टू लाइक पीपल लाइक जो एवरेज है या XYZ, या मतलब ऐसा कोई खराब चीज नहीं है, बट मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही करना है हमेशा अपने लाइफ में. सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड ब्लॉगिंग ऑल्सो. जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था, बहुत हार्डली फ्यू पीपल वर देयर from Pune who were a food bloggers and all of that stuff. तो हमेशा से ऐसा, फिर मैंने सोचा नहीं, अब तो मुझे अपने ऊपर काम करना ही पड़ेगा. फिर मुझे ऐसा लगा कि हाँ यार, अगर मैं ऐसी हूँ, मतलब मुझे देख के लोगों को लगता नहीं होगा कि मैं मुझ में ऐसा कोई कमियां हो सकती है या कुछ फ्लॉज हो सकते हैं, बट आई वॉज वन ऑफ देम. ठीक है, तो बहुत ज्यादा, जैसे मैंने आपको बोला कि आई ऑल्सो टुक लेसन्स लाइक क्लासेस ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. राइट. और पब्लिक स्पीकिंग में सबसे बेसिक फंडा ही उनका ये था कि हाउ टू गेन कॉन्फिडेंस. ठीक है, कॉन्फिडेंस इज द बेसिक, तुम्हारा कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए. एंड सेल्फ डाउट तो बहुत ज्यादा था कि नो, आई एम नॉट दैट गुड लुकिंग, या ऐसा, या XYZ चीजें. बट वो somehow I have overcome now, and that's why I started Inspire Her, कि मैं हूँ तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे. And then ठीक है, अभी सब अच्छा दिख रहा है इंस्टाग्राम पे, तो let me also put something about me. अगर हम इंस्टाग्राम पे कुछ मैं अपलोड करी हूँ, most of the time everyone who is uploading everything on Instagram are pretending to be something. And that could be true. और एक्चुअल में तुम वैसे हो या नहीं हो, और मैं वैसी नहीं थी. कभी कभी मैं खुद भी प्रिटेंड करती थी बहुत सारी चीजें. तो मैंने कहा नहीं, प्रिटेंड करने से नहीं चलेगा, थोड़ा खुद में भी चेंजेस लेकर आना पड़ेगा. और फिर वो कम्युनिटी स्टार्ट किया. आई पोस्टेड अ स्टोरी एंड अ पोस्ट इंस्टाग्राम पे, एंड देयर वर मेनी गर्ल्स जो ऐसा खुद कुछ ना कुछ, एंड मोस्टली वो गर्ल्स कैसे कुछ अपने पास रिलेशनशिप या एक्स बॉयफ्रेंड जो वो होते हैं ना, जो खुद जिसके साथ तुम रहते हो वही तुमको एकदम सेल्फ डाउट में डाल दे कि तुम्हारे में ही प्रॉब्लम है, मेरे में प्रॉब्लम नहीं है, इट्स यू करते हैं ना वैसा. और फिर ब्रेकअप करते थे, तो बहुत सारी लड़कियां अफेक्टेड भी थी उन सब चीजों से. सो दैट्स हाउ. एंड सम पीपल जो ऐसा बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, उनमें भी बहुत कम कॉन्फिडेंस की ऐसा, या क्या कहते हैं, कम था वो भी. तो somehow आई एम देयर फॉर देम. जब हम मिलते हैं, जब इंस्पायर हर के जो भी कहीं पर भी हम मिलते हैं, तो पीपल ऑल्सो रिलेट टू ईच अदर. जो लड़कियां हैं कि हाँ अच्छा, ये स्टोरी तो मेरे साथ भी हुई है यहाँ से लेफ्ट, ठीक है, ये कुछ मेरे साथ भी हुआ है. तो वो कम्युनिटी बिल्डअप हुआ है. आई हार्डली हैव 27 मेंबर्स इन माय ग्रुप. मुझे निकाल दोगे तो 26 हो जाएगा, बट वो 26 भी बहुत है. मतलब मेरा वो इंटेंशन था कि कोई एक जन को भी फर्क पड़ जाए ना, तो इट्स ओके. लाइक एक जन के लिए भी वो हेल्पफुल हो जाना चाहिए. आई एम ओके विद दैट. बट somehow 26 people have joined, like और भी लोग आ रहे हैं. और तो एक वो है. एंड देन एक ट्रैवल कम्युनिटी मेरा क्या कहते हैं,
सोलो ट्रैवल कम्युनिटी, सोलो ट्रैवल कम्युनिटी बोल लो या ट्रैवल कम्युनिटी बोल लो. अब आजकल मैं उस चीज पे काम ज्यादा कर रही हूँ. लाइक बैक ऑफ द माइंड मेरे हमेशा यही चलता रहता है कि हाउ डू आई क्रिएट अ ट्रैवल कम्युनिटी. लाइक जैसे मैंने आपको बोला BHX ग्रुप है, सो समथिंग नॉट सिमिलर टू दैट बट समथिंग डिफरेंट आई वांट. क्योंकि आई नो आई एम अ हैप्पी गो लकी गर्ल. मैं मस्ती करने में आती हूँ तो मतलब नेक्स्ट लेवल मस्ती करती हूँ. मतलब कोई भी एंटरटेन हो ही जाएगा. मतलब वो सारी बकचोदियां में मतलब मैं सीरियस भी हूँ पर मैं मस्तीखोर भी बहुत ज्यादा हूँ. तो फिर पर ऐसा कुछ जहाँ लोग सीख भी पाए और जहाँ लोग एंजॉय भी कर ले. एंड ऐसे हिडन जेम्स जो है वो ये कर लो. एंड ट्रैवल ने भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था. ठीक है, इट्स नॉट अबाउट क्लासेस और ये कुछ. सोलो ट्रैवल भी बहुत सिखाता है. क्या सीखने को मिलता है? क्या मतलब ऐसा क्या तुम्हें लगा कि अरे ये चीज मैंने सोलो ट्रैवल करके सीखी कि मैं ये कर सकती हूँ? एक अच्छा, तो वो था, मुझे पता नहीं था कि वो मतलब हाँ लोगों का मैंने सुना था कि सोलो ट्रैवल करो ये करो. बट वो एक होता है ना कि ओ बॉस ये तो मैंने कर लिया, वो वाला खुशी जो होता है ना. हाँ मतलब ये मेरे लिए तो इतना डिफिकल्ट था मेरे दिमाग में, बट मैंने अब ये कर लिया. और जब तुम नए लोगों से मिलते हो, अब मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जैसे जो यहाँ पे भी नहीं है, आउट ऑफ इंडिया में रहते, कुछ US UK, पर कुछ जैसे बाहर से यहाँ पे आगे सेटल हो गए हैं, या जो भी फ्रेंड्स है वो मेरे नॉर्मल फ्रेंड्स से ज्यादा मुझसे कनेक्ट हो गए हैं. और मैं उनसे ज्यादा स्पिरिचुअल लेवल पे बोलो या माइंड लेवल पे या जो भी लेवल पे बोलो ज्यादा कनेक्ट कर लियो. और उनसे बहुत सीखने मिलता है. एंड when you go to certain places, जैसे अब मैं हिमाचल गई, स्पीति वैली गई, वहाँ के लोग इतने प्यारे, इतने इनोसेंट मैं क्या बताऊं. मतलब ऐसे दया आ रही थी यार, इनको तो कोई भी लूट के लेकर जाएगा. ये आ गए पुणे में तो इनको तो कोई एक रिक्शा वाला भी इनको लूट लेगा. ऐसा पागल बना देगा इन लोगों को वो. बाय द वे ऐसा सोलो ट्रिप प्लान करना मतलब एक्सपेंसेस तो लगते ही होंगे ऑब्वियसली. यस, एक्सपेंसेस लगते हैं. डू यू हैव एनी ट्रिक्स और स्ट्रेटजीज एंड ऑल वेयर यू कैन कट डाउन द एक्सपेंसेस और लाइक ऐसा कुछ है? सोलो ट्रिप में ऐसा है कि यू कैन ट्रैवल बजट, बिकॉज इंडिया बहुत सस्ता है. आई एम टेलिंग यू, ऐसा कुछ नहीं है. अगर आप नॉर्थ साइड जाते हो, अभी स्पीति वैली का ले लेते हैं, मतलब कितना लगा था तुमको कॉस्टिंग? लाइक एक्चुअली स्पीति वैली मेरे लिए फ्री था, क्योंकि मैंने जैसे आपको बोला कि मैं 30 लोगों को अपने साथ लेकर गई थी. तो उन्होंने मुझे और जो मेरा फ्रेंड था, हम दोनों को फ्री ट्रिप दे दिया था. बिकॉज आई गॉट देम बिजनेस ऑल्सो, राइट. एंड वो जो जिनके साथ हम गए थे वो खुद भी वहाँ के लोकल थे, उत्तराखंड के. एंड उनका नाम राणा जी है. तो राणा जी ने न्यू अपने पार्टनर के साथ स्टार्ट किया था. एंड ही वाज आल्सो स्ट्रगलिंग कि कोविड है एंड बहुत ज्यादा लॉस हुआ है. डू समथिंग लाइक लोग लेकर आ जाओ. एंड 30 लोग लेकर गए तो फिर उनका तो अच्छा खासा मतलब ये हो गया ना. सो दैट तो ये बढ़िया है. मतलब कि अगर आपको बिजनेस में थोड़ा सा और कुछ एक्स्ट्रा अगर कुछ आपको करना है, तो आप कम्युनिटी फार्मिंग में भी और वहाँ के जब मैंने जैसे कहा कि लोकल से तुम मिलोगे, तो अगर यहाँ से मैं लेकर जाऊंगी तो मैं अपना प्रॉफिट कोई भी यहाँ की कंपनी हो ट्रैवल वाली XYZ, तो अपना प्रॉफिट लेगी. और वहाँ के लोकल्स हैं, वो लोकल में बात कर लेते हैं लाइक इन देयर लोकल लैंग्वेज, और उनको पता है कि कितना अमाउंट है. तो वैसे ही कट डाउन हो जाता है. ठीक है. एंड देन समहाउ यू हैव टू सेव. 10 डेज का ट्रिप करने जाओगे तो मिनिमम 20 to 25,000 तो खर्चा आने ही वाला है. एंड नाउ डिपेंड्स कि तुम कैसे ट्रैवल कर रहे हो. अगर मैं प्लेन से ट्रैवल कर रही हूँ तो 30,000 तक जाएगा, क्योंकि एयर टिकट्स बहुत महंगे हो जाते हैं. अगर मैं ट्रेन से कर रही हूँ तो उतना कम हो जाएगा, तो ऊपर नीचे हो जाता है. एंड खाना बहुत सस्ता है नॉर्थ में. बहुत ज्यादा सस्ता है खाना, मतलब और इतना यमी खाना मिलेगा और बहुत सस्ता है. तो दिस इज समथिंग. अभी एक इंस्पायर हर तो है ही है. अब एक ट्रैवल कम्युनिटी ऑलमोस्ट समझो कि स्टार्ट ही हो जाएगी ये मंथ. नेक्स्ट पहले तो ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर चुकी हो, तो एक बार कर चुकी हूँ, तो आई हैव एक्सपीरियंस कि कैसा होता है, क्या होता है. विल यू गाइड व्यूअर आल्सो, अगर कोई व्यूअर अगर इंटरेस्टेड है कम्युनिटी फॉर्म करके कैसे आप लीड जनरेट कर सकते हो या फिर कैसे आप बिजनेस क्रिएट कर सकते हो, स्पेशली ट्रैवलिंग हो गया, तो विल यू एबल टू गाइड देम एज वेल इफ एनीबॉडी इज लाइक. अगर जैसे फॉर एग्जांपल अभी तुम्हारे पास कम्युनिटी है, अब जैसे अभी मेरी इंस्पायर हर कम्युनिटी, सो इफ आई गेट अ लॉट ऑफ पीपल, ठीक है, तो अब उसमें मैं कैसे बिजनेस के लिए हेल्प कर सकती हूँ. अगर मेरे पास 30 लोग हैं, मैं जा रही हूँ, ठीक है, मैं अभी आज आउटिंग करने जा रही हूँ XYZ रेस्टोरेंट, तो मैं वो रेस्टोरेंट को अप्रोच करूंगी. सी आई एम गेटिंग यू पीपल, बट देयर शुड बी माई कमीशन ऑल्सो, विच आई हैव नॉट डन येट, क्योंकि मैं उसमें बिलीव ही नहीं करती हूँ. क्योंकि आज तक भी हमें जिस रेस्टोरेंट में गई हूँ मैं, वो मेरे फ्रेंड्स के ही होते हैं. तो मेरे को ऐसा होता है कि चलो उनको भी हेल्प हो जाएगा, क्योंकि इट्स ओके. सब 30 लोग एक साथ नहीं आ पाते. किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ होता है, तो एक वो भी हेल्प हो जाता है.
बट यस, हाँ यहाँ से राइट, एक तुम अगर कम्युनिटी तुम्हारा बन जाता है तो हाउ डू यू मोनेटाइज दैट कम्युनिटी इज लाइक दिस. सो इफ आई हैव अ कम्युनिटी ऑफ माई फ्रेंड्स लाइक थ्रू इंस्टाग्राम, आई नो पीपल हु लव ट्रैवलिंग एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, तो मैं जाती हूँ. अब जैसे मेरे लिए ट्रिप फ्री था, बट मैं नेक्स्ट टाइम वो ट्रिप फ्री के साथ साथ आई विल ऑल्सो ट्राई टू अर्न समथिंग, राइट, बिकॉज आई एम ऑल्सो पुटिंग माई एफर्ट्स. बात करना, कोऑर्डिनेट करना, इट्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, इट्स नॉट इजी. ठीक है, सो यू कैन टेल देम कि हाँ पर बुकिंग पे you can give me this much of commission, 10%, 20%, XYZ. So that's how you build a business out of it. Then you can name that community and then, but yeah, it takes a lot of efforts. Everything you build, कोई भी business पकड़ लो, efforts तो तुमको 100% 24/7 देना ही है उसमें, कुछ भी हो जाए. Any tip you would like to share which you can use to form a community? Just be open to it. टिप मेरे लिए ये होगा कि just be open to it. ठीक है, don't overthink. मतलब 2 मिनट जाएगा कुछ भी अगर ऐसे दिमाग में आ रहा है, ये लाइन बोल देता हूँ मैं, let's कर दो वो चीज, या वो चीज बोल दो सामने वाले को. जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि पराग की चलो, इफ यू वांट टू गो टू अ ट्रिप, ऐसा ऐसा यहाँ पे मैं तुमको पूरा मोटिवेट कर रही हूँ, तो अगर तुम जा रहे हो तो एक काम करना, तुम मेरे साथ चल लो. मतलब जिसके जब मैं लेकर जाऊंगी, तो ये 2 वर्ड्स मैंने बोल दिया ना, अगर तुम जा रहे हो तो तुम मेरे साथ चल लो, तो तुम्हारे दिमाग में तो रहेगा. पर मैं कैसे मतलब मैं सोचूंगी ना कि यार बोलूं नहीं बोलूं या क्या वो करूं, नहीं करना चाहिए. वो मत करो, जस्ट गो फॉर इट एंड गिव योर 100%, बट बी स्मार्ट ऑल्सो, ताकि तुमको लोग पागल ना बना के जाए. हाँ, जैसे अभी कोई है कि आई विल पे आफ्टर द ट्रिप, तो वैसा भी डम मत बनो कि नो एवरीथिंग इज एडवांस नाउअडेज. नहीं, वो उतना मैं स्मार्ट हो गई हूँ कि मैं भाई वो जो भी है कि पहले ही ले लो. Okay, cool. What will be another trait? Another trait would be mindful and self-awareness. Okay. Another trait, mindful and self-awareness. So why I'm saying mindful and self-awareness? Right. Why am I saying mindful and self-awareness is because I've done Vipassana. ठीक है, यही साल में मैंने मार्च में Vipassana किया था. Oh wow! So everything. Is it really useful to do Vipassana? Yes, मुझे तो बहुत ज्यादा फायदा हुआ है Vipassana से, और मेरे अंदर भी बहुत कुछ हुआ है. Because I am a core, ऐसा क्या कहते हैं, हाँ, इफ इट इज अ नंबर इन्फिनिटी वाला ओवर थिंकर मैं ही हूँ, ऐसा लगता है मुझे. मैं पहले बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करती थी, एंड बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग आई हैव रूल्ड लिटरली अ लॉट ऑफ थिंग्स. बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग या नेगेटिव ओवर थिंकिंग बोल लो, या बाद में मुझे समझा कि ओवर थिंकिंग इज ऑल्सो गुड एंड ओवर थिंकिंग इज ऑल्सो बैड. बट जब तुम्हारा बैड ओवर थिंकिंग स्टार्ट होता है ना, विद मिक्स्ड सेल्फ डाउट उसमें डाल दो, लो कॉन्फिडेंस उसमें डाल दो, तो तुम तुम्हारे लाइफ का पूरा भसड़ बना दोगे बेसिकली. ठीक है, तो वो उस सब से निकलने के लिए, एंड ऑल्सो माई ग्रैंड मॉम पास्ड अवे लास्ट ईयर, तो इट वाज अ लॉट ऑन माई सेल्फ कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, ऑल ऑफ दैट क्वेश्चंस इट कम्स राइट इन योर लाइफ. तो वो एक डिप्रेस्ड काइंड ऑफ फीलिंग भी होती है. तो दैट्स हाउ आई वेंट विपासना, एंड विपासना आ जाता है तुम्हारे पास, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर 2 बार ट्राई किया और दोनों बार नहीं हो पाया. बिकॉज फर्स्ट टाइम में तो कुछ प्लान नहीं बन पाया. सेकेंड टाइम पे माई ग्रैंड मॉम वॉज हॉस्पिटलाइज, तो उन्होंने मुझे भेजा नहीं कि नहीं तुम मेरे साथ ही रहो ऐसा ऐसा करके. एंड आई एम लाइक नेक्स्ट लेवल, आई वाज नेक्स्ट लेवल अटैच टू माई ग्रैंड मॉम, लाइक वेरी क्लोज टू हर. तो तब मैं ऐसा कुछ सोच नहीं पा रही थी कि मैं 10 days कैसे ही चली जाऊँ, एंड 10 days नो कॉन्टेक्ट, एंड शी इज हॉस्पिटलाइज. डॉक्टर्स ने बोल दिया है कि कुछ नहीं, मतलब देयर इज नो चांस इन फ्यूचर लाइक शी विल लिव और एनी. सो तो वो तो कैंसिल ही हो गया. एंड देन आफ्टर दिस ईयर इन मार्च somehow I went, like सब कुछ ऐसा था कि यूनिवर्स इज डूइंग एवरीथिंग फॉर मी. इफ आई हैड नो मनी इन माई बैंक अकाउंट, मनी केम इन माई बैंक अकाउंट. इफ आई हैड नो टाइम, आई गॉट टाइम. लाइक everything was something universe was doing. I don't know what. God was there. You believe in manifestation? Yeah, I believe in manifestation. I do manifestation, but yeah, I also believe in hard work. क्योंकि मैनिफेस्टेशन के साथ साथ तुमको काम भी करना ही है. मैनिफेस्टेशन इज समथिंग दैट हेल्प्स यू फोकस्ड, सबकॉन्शियसली तुमको हेल्प करता है, बट ऑफ कोर्स एक्शन भी जरूरी है विद मैनिफेस्टेशन. सो एक वो है समथिंग यूनिवर्स हैज डन टू मी. आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट. और मैं विपासना चली गई. सो वहां से आई लर्नड हाउ माइंडफुलनेस इज, हाउ डू यू बी पेशेंस. एंड विपासना का मेजर बेसिक मंत्रा was था अनिच्चय अनिच्चय अनिच्चय, and अनिच्चय means impermanence.
तुम जब भी और ऐसा सिखाते थे ना, अगर लाइक बेसिक इज इम्पर्मनेंस, नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, सो व्हाई टू डेवलप एन अटैचमेंट या व्हाई टू थिंक अबाउट फ्यूचर XYZ, मतलब मैं इतना सोचती नहीं हूँ अभी आफ्टर दैट, एंड व्हाई टू इवन ओवरथिंक, जो why when I used to overthink, U-turn ले लेना, when I used to overthink and all of that stuff, तो क्यों overthink कर रही हूँ मैं, उसका भी मुझे आंसर मिल गया, and everything is not everything is temporary in this world. कुछ भी पकड़ लो, कोई भी चीज पकड़ लो तुम, उन्होंने हमको बोला था you debate something that is permanent in this world, that is nothing, ठीक है, और so that's what Vipassana taught me, and then that's what I also वहां से मैंने ग्रोथ, मेरे अंदर मेंटली बहुत ज्यादा ग्रोथ आई है विपासना से, और सेल्फ अवेयर, जैसे क्या ग्रोथ आई? ग्रोथ जैसे अभी सेल्फ अवेयर हो गई हूँ लाइफ में, कि मैं क्या हूँ, व्हाट इज माय वर्थ, क्योंकि बहुत टाइम, जैसे मैंने कहा था, इंस्पायर हर भी वाज समथिंग, मेरे को खुद का ही वर्थ नहीं समझता था कि मैं व्हाट आई एम वर्थ, लाइक, तो वो भी एक था, वर्थ समझ गया है, लाइफ के बारे में समझ गया, आई गॉट वन मोर थिंग व्हिच वाज कि मुझे मेरा लाइफ का पर्पस क्या है वो जानना था, राइट, कि विपासना, एंड आई थॉट विपासना मेडिटेशन करके कुछ ना कुछ होने वाला है मेरे लाइफ में, और मुझे मेरे लाइफ का पर्पस आई वाज सो मच इनटू कि मुझे पर्पस जानना है कि व्हाट आई एम आई फॉर इन दिस वर्ल्ड, कि किस चीज के लिए हो। अब जैसे तुम हो रोबोट बनाने के लिए, तुम्हारा लाइफ का पर्पस, एग्जांपल मैं बता रही हूँ, तो यहाँ से लेफ्ट मेरा घर आ जाएगा, तो मेरे लाइफ का पर्पस क्या है, तो मैं उसमें थी, बट दैट वाज समथिंग आई वाज चेजिंग, जो कुछ है ही नहीं, लाइफ का पर्पस ही मुझे वहां जाके समझा कि एवरी डे तुम कैसे डील करते हो, हाउ आर यू इन प्रेजेंट, दैट इज द मोर बिगेस्ट पर्पस इन योर लाइफ, क्योंकि हम एज ह्यूमंस वी ऑलवेज आर इन द पास्ट और वी आर इन द फ्यूचर, हम प्रेजेंट में होते ही नहीं है मोस्टली, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं होती थी पहले, लाइक लिटरली मैं हमेशा या तो फ्यूचर का टेंशन लेती थी, या तो मेरे पास में जो भी कुछ हुआ है उसके ऊपर मैं अपने आप को विक्टिमाइज करती थी कि नहीं यार मेरे साथ क्यों हुआ है, व्हाई नॉट विद दैट पर्सन, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, XYZ। तो वो वहां से सीखा कि भाई लाइफ का पर्पस ही वो है कि तुम उस दिन को कैसे जी रहे हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ, बहुत छोटी भी है लाइफ, तो वो भी एक चीज है। एंड सेल्फ ग्रोथ बहुत हुआ है कि अब आई लुक इनटू थिंग्स अ वेरी डिफरेंट वे, जैसे पहले मैं कोई एक एग्जांपल लेके बता सकती हूँ, पहले मैं इस चीज को ऐसी देखती थी और ऐसा मेरा पर्सपेक्टिव होता था, एंड नाउ दैट पर्सपेक्टिव हैज चेंज्ड। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल माय बिजनेस, मैं पहले बहुत सोचती थी यार कस्टमर्स आएंगे क्या, या ऐसा क्लाउड किचन, हाँ क्लाउड किचन के लिए कस्टमर्स आएंगे क्या, या फॉर एग्जांपल लॉ में भी मैं इतना ओवरथिंक कर लेती थी कि वही है ना कि यार अगर ऐसा बोल दिया और मेरे को नहीं आया क्लाइंट के सामने, मैं नहीं कर पाई, या क्लाइंट ने मुझे जज कर लिया कि यार इसको तो एक्सपीरियंस ही नहीं है, या XYZ, सब कुछ पता है पर फिर भी वो होता है ना कि सोचो फ्यूचर के बारे में टेंशन लो कि चलेगा क्या, ये वीकेंड पे ऑर्डर्स आएंगे क्या, या लोगों को मेरा टेस्ट अच्छा तो लग रहा है ना, या XYZ जो भी चीज है, बट आई डोंट केयर नाउ, भाई मुझे पता है कि मैं अच्छा ही बेच रही हूँ और मैं अच्छा ही हूँ, मतलब अभी मैं मोस्टली अभी आफ्टर विपासना ऑल्सो, या अभी लेटली इनटू द लाइफ, मैं ना अपने आप को बहुत अपग्रेड करती हूँ हर एक चीज में, वो भी यू कैन से इट्स माय ट्रेट और समथिंग, और आई लाइक टू अपग्रेड माई सेल्फ, आई लाइक, अगर मैं कोई रूम में हूँ, आई शुड नो एवरीथिंग व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट, आई शुड बी दैट नॉलेजेबल, कोई ऐसा प्रेशर नहीं है मुझे, बट आई लाइक व्हेन पीपल आर टॉकिंग अबाउट सर्टेन टॉपिक, कोई अब जैसे तुम बोलो कि कोई भी टॉपिक है, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग पकड़ो, तो थोड़ा बहुत आई शुड ऑल्सो नो टू अंडरस्टैंड कि एकदम ऐसा डम जैसा नहीं रहना है मुझे, सो दैट्स व्हाई आई कीप ऑन अपग्रेडिंग माई सेल्फ कि दुनिया में क्या चल रहा है और ये वो, प्लस ये भी एक है कि अभी खुद को मुझे पता है कि हाँ मैं तो बेस्ट क्वालिटी सर्व कर रही हूँ, ठीक है, पहले प्राइस पॉइंट पे भी ऐसा लगता था यार इतना महंगा मटन लोग खरीदते होंगे क्या, मतलब मैं खरीदूंगी क्या, फिर मुझे वही लगा ना, जब अगर मैं खुद ही इतना डाउट में हूँ तो सामने वाला को तो मैं वही एनर्जी पास ऑन करूंगी ना, विदाउट इवन नोइंग, क्योंकि मैं खुद वो प्रोडक्ट से कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो वो एक था। और हाँ, फिर अभी तो पता चला है मुझे कि यस आई नो आई एम इनटू क्वालिटी मोर, and quantity तो it's okay, it's normal, but quality is something I prefer more in my work, in my business, in my food, in my everything in my life. One thing I've learned after कि think first class, don't think second class. तो
because I also read a lot of books nowadays. Lot of भी नहीं, कुछ books जो ऐसा motivational books होती है, तो that also helps me like be self-aware about what I am and what am I doing in my journey, कैसे चल रहा है life और वो सब, तो वो एक Wonderful. Would you like to recommend any book कि अभी which right will now help you to मतलब viewers को जो help करे, अगर if they are also in the position कि वो खुद पे बहुत सेल्फ डाउट कर रहे हैं, तो दैट विल हेल्प देम, ऐसा कोई बुक? सेल्फ डाउट के लिए है द माउंटेन इज यू, द बुक का नाम है द माउंटेन इज यू. और एंड इफ यू वांट टू डू समथिंग रियली बिग इन योर लाइफ एंड इफ यू आर मोटिवेटेड इनफ कि नहीं बॉस यार कुछ तो है मेरे लाइफ में, और मुझे हमेशा लगता है कि देयर इज समथिंग बिग फॉर मी हैपनिंग, जिस वो मैं वेट कर रही हूँ कि वो कब बड़ा होगा, बट मैं अपना जर्नी तो मैं अपना वैसे ही वो पास मतलब वैसे ही चल रहा है मेरा जर्नी, बट समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन टू मी. बट उसके लिए वो जो कॉन्फिडेंस भी बोलो या बिलीव बोलो कोई भी चीज में, तो वो बिलीव लाने के लिए एंड मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, यू शुड ऑलवेज थिंक बिग. ये भी एक बुक है, राइट? हाँ, तो दैट्स व्हाट आई हैव read that book. It's really nice book. So that's from that book I learned कि always think first class. ठीक है, अभी वो होता है ना, सस्ता रोए महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार, वो वाला कोट है ना. तो तुम फर्स्ट क्लास सोचोगे ना तो तुम एक ही बार रोगे अपने लाइफ में, और तुम सेकंड क्लास सोचोगे ना तुम रोज रोगे, राइट? तो वैसा एक है. तो दिस 2 books एंड 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, एक वो भी एक बुक है. रिच डैड पुअर डैड भी एक अच्छी बुक है. आई रीड दिस लाइक दिस आर माय टॉप 4 books दैट यू शुड रीड ऐसा. मुझे शायद ट्रेड्स खत्म हो गया है. ओके, कोई दिक्कत नहीं. हाँ, क्यूरियस एंड नॉलेज ड्रिवन, तो वो अभी उसी में क्या हो क्यूरियस है. मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ लाइफ में. एवरीथिंग आई नीड टू नो, लाइक इवन इफ यू अभी जब हम मिले, आई नीड टू नो लाइक एवरीथिंग. मुझे ऐसा लगता है कि ना मेरे क्यूरियोसिटी कब स्टॉप हो गया, ऐसा मुझे कभी कभी लगता है. बट या व्हाट आई फील कि क्यूरियोसिटी जो है तुम्हारी, उसके साथ तुमको जो चीजें पता चलती है, यू शुड थिंक ऑफ putting those things into an execution. Yeah, exactly. और वो मेरा एक अलग ही डोपामिन हाई हो जाता है when I get to know something new, या कुछ नया नॉलेज मिल जाता है, या मेरा क्यूरियोसिटी वो सॉल्व हो जाता है ना. एंड दैट्स व्हाई लाइक हर चीज में wherever I am really curious. तो जब वो क्यूरियोसिटी तुम एंड दैट्स हाउ यू आल्सो ग्रो, राइट? अगर मैं क्यूरियस ही रहती रहूं और मैं नहीं पूछूंगी, नहीं कुछ होगा, तो मैं उधर ही स्टक रह जाऊंगी. व्हेन आई एम क्यूरियस एंड पीपल आंसर, लाइक आई गेट टू नो थिंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल कि कैसे चलता है लाइफ में. एंड मोस्टली आई एम क्यूरियस अबाउट माई बिजनेस, या आई टॉक टू अदर बिजनेस पीपल लाइक हु आर रनिंग, सो उनसे वो क्यूरियोसिटी पता चलता है, मुझे आंसर मिल जाता है अबाउट माई क्वेश्चन की. कुछ और क्वेश्चन है, अच्छा अभी मुझे पता चल गया कि कैसे जाना है, कौन सा रास्ता पकड़ना है, या कैसा. Any example you would like to tell, Kere? I was curious and out of the curiosity this question came into my mind. Okay. It got helped me to move एक further. example I can give you like for my business also, if I say I was very curious how to execute it. Cloud kitchen वाला. हाँ, first was how do you execute it? अब अगर मैंने एक फ्रेंड को पूछ लिया, यार तू कैसे कर लेती है, हाउ डू यू, मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि तुम घर से कैसे कर लेते हो. तो उससे पता चला वो क्यूरियोसिटी से कि अच्छा फसाई लाइसेंस लेना पड़ता है, शॉप एक्ट लेना पड़ता है, एंड दिस इज हाउ यू स्टार्ट. फिर और क्यूरियोसिटी आई कि इफ वंस आई स्टार्ट हाउ डू आई सेल इट, कि कैसे करें. इंस्टाग्राम इज सो वन थिंग, बट ऑफलाइन ऑल्सो, सो हाउ डू यू नो माउथ टू माउथ कैसे वर्ड्स कैसे प्रमोट करे वो चीज. So viewer, if you are also curious, you can just slide in our DMs. Curiosity की queen हूँ मैं. Just pour all of your curiosity. I hope you'll answer all of. Yeah, अगर हाँ. So if I have any answers I will definitely help, because helping is something that really makes me happy. Nice. So yes. So Payal, what are your future plans to grow the 3 things what you just told in the starting? One was your law thing. Another was, I guess, your cloud kitchen wala thing. Third one, influencer wala thing. And I would say inspire her, and as well as your solo travel community. Yeah, 5 things at one time. Oh my God. So do you have any plans to expand or scale up? Yeah, definitely, because I don't want to be at what I am like tomorrow, after next year. अब जैसे new year आ रहा है, there's always a resolution in your mind, like always goals are there. My God, I should. बहुत ज़्यादा आवाज़. I think he is barking on us only. Okay. उनको नहीं चाहिए. Okay. To your place on. ये थोड़ा light आ रहा था तो मैंने सोचा यहाँ पे ले लेते हैं.
तो न्यू ईयर, हाँ न्यू ईयर तो एक है ही कि न्यू ईयर होते हैं और नए गोल्स आ जाते हैं, बट डेफिनेटली आई वांट टू टेक माया's किचन टू गोवा because Goa is my like मुझे ऐसा लगता है मैं गोवा Cloud के लिए kitchen you wanna take to no Goa? no not cloud kitchen. I want to make a good restaurant out of it, or I want to expand it also. Sindhi cuisine will be the basic, like I want to also promote my culture and everything about what I am and all of that stuff. And Sindhi food is really 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 tasty and किसी दिन try करना, बहुत पागल हो जाओगे. You just need to invite me for that. Yes, I will definitely. और so that would be something. And Goa is something I see myself in future. Agar if I ever I'm settling down or retiring or anything, it's Goa for me, right? Traveling भी हो सकता है वहाँ पे. से मैं travel कर लूंगी कहीं भी. मतलब everything is. But ऐसा है ना कि पुणे तो है ही बेस्ट है, सब कुछ बेस्ट है, बट समथिंग इज देयर इन गोवा फॉर मी. मैं हर साल 2 से 3 से 4 से 5 बार जाती रहती हूँ गोवा को. हाँ मतलब तो हर अगर मुझे गोवा की ट्रिप करनी हो तो तुमसे थोड़ा गाइडलाइन लेनी पड़ेगी है ना, कहाँ पे रुकूंगा. मुझे हर गलियां पता है गोवा की, किस गली में क्या है, ऐसा है. तो मैं हर 2-3 महीने में एक बार तो गोवा जाती हूँ, ऐसा है. अभी भी तुम सोलो जाती हो या फिर यू? समटाइम्स सोलो, समटाइम्स फैमिली, समटाइम्स फ्रेंड. तो मैं ऐसा कोई किसी पे एग्जैक्टली अगर इंडिपेंडेंस आ जाता है ना तो मैं आई डोंट लाइक टू बी डिपेंडेंट अपॉन एनीवन कि वो चलेगा तो मैं निकल जाती हूँ. तो विपासना वाज आल्सो सोलो ट्रिप फॉर मी. लाइक फर्स्ट मतलब विपासना खत्म करने के बाद 2-3 दिन मैंने सोलो ही ट्रैवल किया. तो वहां पे भी जो विपासना के फ्रेंड्स मुझे मिले थे, तो मैं वो भी खुद, अब लड़कियां वहां पे, और मेरा विपासना था सारा ऑल गर्ल्स कोर्स था वो वाला, इट वाज ओनली फॉर फीमेल. तो वहां पे कुछ लड़कियां लिटरली यूएस से, मेरी फ्रेंड है ना, वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, तो वो सीधा यूएस से यहाँ गोवा लैंड हुई और सीधा विपासना आ गई. सो पीपल आर डूइंग समथिंग लाइक दैट, उनको यूएस में भी तो सबसे बेस्ट होता है विपासना, बट उनको कुछ और करना है, लाइक इंडिया में उनको, और इंडिया में. सो हैना वाज इनटू हर ईट प्रे लव जर्नी. शी इज फ्रॉम क्या कहते हैं, कैलिफोर्निया, एंड देन तो शी स्टार्टेड ईटिंग एट न्यूयॉर्क, जस्ट लाइक दैट मूवी ईट प्रे लव. तो उसने ईट किया कैलिफोर्निया में, प्रे किया इंडिया में, एंड लव किया बाली में. तो शी वेंट टू फाइंड हर लव एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ इन बाली. शी वांटेड टू डू दैट थिंग, ईट प्रे लव. मूवी है वैसी एक एक्चुअली नेटफ्लिक्स में. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मूवी. शी गॉट टू मच इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट एंड शी वांटेड टू ट्राई आउट. सो व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग इन योर लाइफ, सो वो मूवी में भी ऐसा ही था कि she went through a lot, divorce and all of that stuff, but she never met her love of the life और ऐसे. तो she started doing it. She had उस मूवी में eat was in Italy, pray was in India, and then love was in Bali. वही है, तो उसने प्रे करने के लिए वो मेडिटेशन. तो people are doing that. तो why not me? Like मुझे क्यों, मैं क्यों इतना डर रही हूँ हर चीज में. तो वो एक है कि एक, हाँ, तो फ्यूचर में क्यों चालू किया ये टॉपिक मुझे ही नहीं पता, बट कैंसिल कर देना ये. एक वो विपासना है. अब जैसे गोवा है, तो गोवा में मुझे ट्राइबल कम्युनिटी तो डेफिनेटली करना है. इंस्पायर हर को मुझे और बढ़ाना है. मतलब आई वांट पीपल लाइक गर्ल्स फ्रॉम पैनी, एंड पीपल शुड, द गर्ल्स शुड बी देयर फॉर गर्ल्स. ऐसा नहीं कि देयर आर रियली गुड फ्रेंड्स ग्रुप ऑल्सो ऑफ माई. वो मुझे ऐसा, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड भी कभी मुझे नहीं समझ जाएगी ना, वो मुझे समझ है. तो ऐसे सबके लिए कोई ना कोई होना चाहिए, बिकॉज दिस वर्ल्ड इज डिफिकल्ट ऑल्सो समटाइम्स, एंड adulting sucks. I would say adulting sucks. It's also good, but it also sucks. So there should be someone. तो एक उसको पैन इंडिया करना है. धीरे धीरे हो जाएगा. पुणे के तो लड़कियां है ही, गोवा ऐसे, तो धीरे धीरे ये हो जाएगा. डेफिनेटली मुझे व्हाइट कॉलर क्राइम में, मैं कॉर्पोरेट लॉ पढ़ रही हूँ, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेती हूँ. बट वो तो मेरा फ्यूचर बहुत ज्यादा आगे का गोल है. अभी के लिए मुझे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए ताकि मैं वो पाथ में कॉलर क्राइम नामचीन लॉयर बन जाऊं मैं. दिस इज माय गोल. लॉ तो पढ़ूंगी, लॉ के जो पैसे आएंगे उससे मेरा गोवा में किचन चलेगा. फिर जो किचन के पैसे होंगे वो तो और उसको और एक्सपांड हो जाएगा. फिर साइड बाय साइड में ट्रैवल भी करूंगी मैं, उसमें इन्फ्लुएंसिंग भी ऐड कर लूंगी. मेरा सारा वो सब नेक्स्ट 5 years का गोल आई हैव इट विथ मी, बट मैं नेक्स्ट 10 years का मैं सोचती ही नहीं हूँ. सी एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई लर्न फ्रॉम विपासना. इतना आगे का सोच के कुछ नहीं, भी कल क्या करना है वो सोचो पहले. मतलब शॉर्ट टर्म गोल्स आई हैव इट. मुझे कंसिस्टेंट रहना, डिसिप्लिन्ड. हाउ डू यू एंश्योर दैट यू आर कंसिस्टेंट एंड यू आर डिसिप्लिन्ड? इट्स ऑलवेज सेल्फ मोटिवेशन. अब अगर मैंने गोल्स लिख के रखे हैं, अब जैसे मैंने आज तुमसे बात किया, तो एक काइंड ऑफ मुझे खुद ही मोटिवेशन. कल वीकेंड है, पर थोड़ा बहुत तो काम करना ही है. ज्यादा वीकेंड मत मनाओ. हाँ, ज्यादा वीकेंड मत मनाना. बैठ के थोड़ा सीरियस रहना पड़ता है.
And when you have a family जहाँ पे तुम क्या eldest तो वो तो फैमिली भी काइंड ऑफ प्रेशर, काइंड ऑफ मोटिवेशन, काइंड ऑफ एवरीथिंग दे ही देती है somehow. And exactly again then I also have friends जो हम जब भी मिलते हैं we always talk about क्या कहते हैं कैसे आगे बढ़ना है, कैसे ग्रोथ होगी. मैं निकाल देती हूँ अभी. Yeah, sure, no problem. ग्रोथ कैसे होगी और बाकी चीजें कैसे होगी. तो फ्रेंड सर्कल भी वैसा बना दो. और मोस्टली तो हाँ एग्जैक्टली व्हेन खुद को ही खुद से मोटिवेट करना पड़ा हमको बहुत टाइम. You have to motivate yourself every now. When your goals, when you write it, it helps you. So you do prefer कि you do write your goals? Yeah, I do journaling also every day क्योंकि ताकि मेरा overthinking जो भी है वो भी जितना भी थोड़ा बहुत भी है तो वो भी चला जाए journaling में. And then I also write my goals because I like वो टिक करना होता है ना, चेक कर लो ये बॉक्स, चेक कर लो ये बॉक्स, चेक कर लो. That would be helping you to be a consistent and disciplined, I would say. So ये activity अगर हम हमारे लाइफ के अंदर और डेली रूटीन के अंदर अगर हम ऐड करते हैं तो that will help you to be a consistent and disciplined, like writing the things and ticking whatever you are completing. And when you see every day, that's how you manifest it. And when you manifest it, और वो एक तो तुम दोनों चीज हो जा रहा है ना, राइट कर रहे हो, लिख रहे हो और वो कर भी रहे हो, उसके लिए काम भी कर रहे हो. एंड सबकॉन्शियसली वो मैनिफेस्ट भी हो रहा है. एंड यू प्रे आल्सो अबाउट इट व्हेनेवर जब रात को ऐसा थोड़ा शांति से बैठती हूँ. एंड देन आई प्रे महादेव को कि आप ऐसा करो मेरे साथ. दिस इज हाउ आई एक साथ चलता रहता है. यस. सो व्यूअर्स में जितने भी गर्ल्स होंगे आई वुड रिकमेंड यू टू जॉइन हर, इंस्पायर हर कैन आल्सो फॉलो मी. बिकॉज आई थिंक कि जितने भी लड़कियां मेरे कनेक्शंस में हैं, आई फील कि 99.99% ऑफ गर्ल्स आर हैविंग प्रॉब्लम ऑफ ओवरथिंक एंड शी हैज क्रिएटेड अ प्लेटफॉर्म where you can really deal with your this overthinking wala. So maybe that will really be helpful for you by joining with her group. And yeah, agar koi Sindhi try karna chahta hai and if that person is living in Pune nearby in the Pimpri area, then definitely CNC Pimpri to Maya's Kitchen. You just Google Maya's Kitchen, order कर देना. और हाँ, और अगर कहीं फंस भी जाओगे तो लॉयर भी मैं ही हूँ. अगर फूड रिकमेंडेशंस भी चाहिए तो फूड ब्लॉगर भी मैं ही हूँ. तो मुझे बेसिकली इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना. किसी को अगर घूमने जाना है तो ट्रैवल भी मैं ही लेकर जाऊंगी. ट्रैवल आल्सो शी विल टेक केयर ऑफ इट. हाँ. So yeah, bye bye guys. Bye bye. And thank you. Thank you so much.